Okay, good evening, all of you, and wish you happy Dasara vacation. And I hope last class, whatever we have completed, and whatever the concept we have completed, numericals or other definitions, I hope you have already completed that things. Okay, मस्ती भी करो, मजा भी करो, सब चलो ठीक में, साथ में सब रहना चाहिए। प्रेशर कुकर नहीं है ना आप लोग, तो एंजॉय करना है, ठीक है। एंजॉय करना है, साथ में चलना है, आराम से एंजॉय करके, ठीक है। So last class we have completed, we have started the Newton's laws of first laws, and among that we have force completed already. What is the force? Only completed that part, and its resultant part will be continued today. And my dear student, it's the part 2, that is Newton's laws of motion part 2, and you can follow us with the Telegram channel also. In the Telegram channel, you can find out that Vijay, the material name is Vijaya 1, Newton's laws of motion part 1 up to impulse. Okay, that PDF you can get from that. That is, so many numericals are there. Also, that PDF, handwritten PDF is there. You can follow from the Telegram channel. And you know your channel name is what? Iconic concept at the rate of BTP sir. You can follow the Telegram channel and you can collect the notes. Okay. So now we'll be continue. ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि too long syllabus is there. Laws of motion, it is very conceptual and too long that topic. So we can proceed now. Okay, so have the patience and try. Okay, my dear student, sound, audio, video सब clear है ना? I hope everything is okay, and we'll be start now. So last class we have completed, my dear students. Force is equals to m into a. We have completed, where we got that a is equals to what? Acceleration of a body. Yes or no? That is the acceleration of a body, and m is equal to mass of the body, already completed. And F is equals to force. So my dear student, you know, all of you know that force is a which quantity? Scalar or vector? Force is a scalar or vector? Comment में बताना, ठीक है? 11th student especially, force is a scalar or vector? ठीक है? Okay. So now we can proceed. So I'm continuing. Force is what? We know force is a vector quantity. Yes or no? Force is a vector quantity. Vector quantity. Force is a vector quantity. Means it have the magnitude. Yes or no? It have magnitude. Then it has the direction, and it must be obeys the vector laws of addition. It must obeys the vector algebra. Yes or no? Vector algebra, it must be obeyed. Yes or no? So if a vector quantity obeys the three conditions: magnitude, have the direction, and obeys the vector algebra, I can conclude that is a vector quantity. So force is a vector quantity, already we know. So try to understand force resultant. We have to calculate force of resultant. Force of resultant. Resultant means I can tell it is F net. What it is? F net. Net force is how much? F net is equal to how much we have to calculate. Try to understand, my dear student. Let's consider the sign convention purely depends on you. Sign convention purely depends on you. Let's consider. What do you consider? Left hand side force is equal to negative, and right hand side force is equals to positive. Clear? So one is I consider negative, one is consider positive. Any person can consider also left hand side forces, or you can consider left hand side force is positive, right hand side is negative. Else it is depends on you. So let's consider will be completed. The left hand side force is negative and right hand side force is
positive. According that we can proceed the concepts. Okay, try to understand. Now my dear student, we get what we get. Suppose I consider a space is present over here. That is a space. Solid surface I can consider, that is a solid surface. Try to understand. Suppose on the solid surface, okay, on the solid surface, one solid body is present. एक बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी, ठीक है. ऑन द सॉलिड सरफेस क्या प्रेजेंट है? एक बॉडी प्रेजेंट है. बहुत सारा आज न्यूमेरिकल बनाएंगे, पर मस्त से धूम मचा के न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है. पूरा जो एक सॉलिड बॉडी में लेट एज्यूम वन पर्सन अप्लाई सम फोर्स ओवर हियर, फोर्स ऑफ राइट हैंड साइड. यस और नो? मतलब ये प्रेजेंट है लेफ्ट में, बट जा रहा है कहाँ? राइट में. यस और नो? बॉडी का लेफ्ट में प्रेजेंट है. ये सपोज फॉर एग्जांपल ये बॉडी है ना, ये लेफ्ट में प्रेजेंट है, बट जा रहा है कहाँ? राइट की ओर. ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, बट जा रहा है कहाँ? राइट की ओर. सिमिलरली ये बॉडी में राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, बट जा रहा है कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड. सो इसको लिखते हैं फोर्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 20 न्यूटन. Force of right hand side is equal to, let assume, 10 Newton. Let assume. Clear? So my dear student, what is the resultant will become? We know force of resultant. Force of resultant क्या होगा? Force of left hand side minus force of right hand side. So you know force of left hand side is what? Left hand side force is negative. Left hand side force is negative. Minus right hand side force is how much? Right hand side force is positive. Yes or no? So minus 20 plus 10 is equal, how much it is answer come? Minus 10 Newton. Means you can conclude कोई एक बॉडी को, सपोज मान लेते हैं एक बॉडी ले लेते हैं, किसी को भी एक बॉडी लेते हैं, मान लेते हैं एक बॉडी है, ठीक है. मान लेते हैं 1 मिनट, एक बॉडी ले लेते हैं, ठीक है. सॉलिड बॉडी ले लेते हैं, एक सॉलिड बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं. मान लेते हैं ये एक सॉलिड बॉडी है. क्या है? एक सॉलिड बॉडी है. तो कोई एक पर्सन इसको यहाँ पे खींच रहा है 10 न्यूटन में, कोई एक पर्सन ने इसको यहाँ पे खींच रहा है 20 न्यूटन में. तो बॉडी कहाँ जाएगा? 10 न्यूटन इधर जाएगा. बोलो यस और नो? यस और नो? कोई एक बॉडी 10 न्यूटन में यहाँ खींच रहा है, कोई एक बॉडी 20 में यहाँ खींच रहा है, तो बॉडी कहाँ जाएगा? 10 न्यूटन उधर. यस और नो? सिमिलरली नेगेटिव साइन मीन्स इट इज कंसिडरिंग द लेफ्ट हैंड साइड बॉडी विल बी मूव. लेफ्ट साइड बॉडी विल बी मूव. कहां पे होगा? बॉडी लेफ्ट साइड में जाएगा. बॉडी कहां पे जाएगा? बताओ, बॉडी कहां पे जाएगा? बॉडी विल बी मूव लेफ्ट हैंड साइड. बोलो यस और नो? बॉडी कहां पे मूव करेगा? बॉडी विल बी मूव लेफ्ट हैंड साइड. यस और नो? एम आई करेक्ट? सिमिलरली बॉडी विल बी मूव लेफ्ट साइड. मान लेते हैं अंदर एक सॉलिड बॉडी ले लेते हैं, ठीक है. सॉलिड सरफेस ले लेते हैं. बी पेशेंस, आराम से स्लोली ट्राई टू अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट, ट्राई टू बिल्ड इट, ठीक है. मजा लेंगे, पूरा प्रेशर नहीं है, आराम से एंजॉय करके, ठीक है. वन फोर्स इज लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इज, सॉरी राइट हैंड साइड फोर्स इज एक्टिंग हाउ मच? 100 न्यूटन. हाउ मच? 100 न्यूटन. And left hand side force is acting how much? Let assume 70 Newton. How much? 70 Newton force of left hand side. 70 Newton. तो resultant कितना होगा my dear student? Force of resultant is how much? 100 Newton minus 70 Newton is equal to how much? 30 Newton. पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं? बोला yes or no? बोला yes or no? बोलो यस और नो? 100 न्यूटन माइनस 70 न्यूटन इक्वल टू 30 न्यूटन. आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव. पॉजिटिव मींस कहां जाएगा बॉडी? मैंने एज्यूम किया पॉजिटिव मींस राइट हैंड साइड. वेरी सिंपल थिंग्स यार. बॉडी मूव्स इन राइट हैंड साइड. एक ग्रामेटिकल गलती हो गया ना, मूव थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, मूव्स. ओके, मूव्स इन राइट हैंड साइड. हाँ, इंग्लिश भी आता है यार, बहुत इजी है. वो भी एक ग्रामर होता है ना, ग्रामर जो एक साइंस होता है ना, इसके लिए वो भी आता है मुझे, ठीक है. बताएंगे इंग्लिश में भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, सब शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है. बॉडी मूव्स इन
राइट हैंड साइड। बोलो यस और नो। बॉडी कहां पे मूव करेगा? राइट हैंड साइड में जाएगा। ठीक है, बोलो यस और नो। श्योर। हाँ, कोई कोई मेरा स्टूडेंट ऑफलाइन स्टूडेंट बोलते हैं सर का डायलॉग यस और नो। ओके ओके फाइन। ओके, तो बॉडी कहां पे जाएगा? राइट हैंड साइड में जाएगा। ठीक है कि नहीं? ओके, अब प्रोसीड करते हैं। हाँ, ठीक है। सो फोर्स आ गया, राइट हैंड साइड बॉडी जाएगा, ये फोर्स आ गया। तो माइंड स्टूडेंट अब कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑफ रिजल्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्स ऑफ रिजल्टेंट, फोर्स ऑफ रिजल्टेंट एंड इट्स इफेक्ट, एंड इट्स इफेक्ट। अरे सब घर में घूम रहे हैं कि नहीं? हॉस्टल का लाइफ पूरा बोरिंग हो गया ना, जेल लाइफ से ज्वेल लाइफ में गया है कि नहीं? अब कहां से कहां तक गया? जेल लाइफ से ज्वेल लाइफ ना। सो मस्त एंजॉय करना दसरा वेकेशन में। ठीक है, थोड़ा बहुत ओनली फिजिक्स पढ़ाई करना नहीं यार, और सब पढ़ाई करोगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना, पूरा एंजॉय करना मस्त है। ठीक है, ज्यादा नहीं। सो फोर्स ऑफ रिजल्टेंट एंड इट्स इफेक्ट, क्या है इफेक्ट देखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट पॉइंट इट इज टेलिंग इट में, इट में चेंज द स्पीड, चेंज द, चेंज द स्पीड। कि कोई एक बॉडी का स्पीड को चेंज कर देता है। मान लेते हैं माइंड स्टूडेंट एक बॉडी है, ये कहां पे जा रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। कैसे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। बॉडी कहां मूव कर रहा है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बॉडी जा रहा है। ठीक है, तो एट द टाइम कोई एक आया, यहाँ किक डाल दिया, जोर लगा के पूरा खाली ग्रेड खाली ना आया, यहाँ किक डाल दिया। क्या डाल दिया? सर टूट देगा सर। नहीं नहीं, तोड़ा नहीं, मान लेते हैं आयरन पीस है, तो फोर्स डाल दिया, फोर्स ऑफ एक्शन डाल दिया। तो ये बताओ तो माय स्टूडेंट, ये जो लैम्बोर्गिनी था जा रहा था कौन सा स्पीड में? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। तो फोर्स डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी नहीं? वेलोसिटी विल इंक्रीज, यस और नो? वेलोसिटी विल बी इंक्रीज और नॉट? तो ये जो वेलोसिटी है किसके लिए इंक्रीज किया, किसके वजह से? ड्यू टू दैट एक्शन फोर्स। बोलो यस और नो, है कि नहीं? कोई एक वेलोसिटी में आप जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, पानी पूरी खा रहे थे, और क्या, लड़की घुमा रहे थे। ठीक है, तो एट दैट टाइम कोई एक ज्यादा फोर्स आ गया, तो क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। बोला यस और नो? ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। सो इफ द फोर्स ऑफ रिजल्टेंट एक्शन इज अप्लाइड ओवर हियर, फोर्स ऑफ रिजल्टेंट इज अप्लाइड, force of resultant is applied on it, velocity will be increase. If force resultant और net force is equal to 0 हो जाएगा my dear student, तो velocity क्या होगा? velocity क्या हो जाएगा? remain unchanged, remain unchanged, remain unchanged हो जाएगा, है कि नहीं? और यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, सो जब एफ नेट 0 हो जाएगा, एट द टाइम वेलोसिटी विल बी रिमेन अनचेंज होगा। इफ एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, इफ एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, देन वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस होगा, है कि नहीं? एट द टाइम क्या होगा? वेलोसिटी चेंजेस। जब एफ नेट 0 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, मींस कोई एक बॉडी में लेफ्ट हैंड साइड फोर्स जितना है, राइट हैंड साइड उतना है, तो क्या हो जाएगा? एफ नेट 0, तो इसका कोई भी इंपैक्ट बॉडी के ऊपर नहीं होगा। कोई एक बॉडी लेफ्ट हैंड साइड में 20 है, राइट हैंड साइड में 10 है, तो लेफ्ट हैंड साइड का भारी ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसी का ही काम करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही जाएगा। बोला यस और नो? बोला यस और नो? श्योर? ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट, इट मे बी चेंज द स्पीड। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज द पॉइंट नंबर 2? इट इज टेलिंग दैट it change the direction, it change the direction. My student try to understand, very interesting things है। ओके, ये मान लेते माइंड स्टूडेंट कोई एक बॉडी ऐसे जा रहा था, कैसे? ट्राई टू अंडरस्टैंड।
कोई एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी कैसे जा रहा था, इस डायरेक्शन में, क्या नहीं है ना, डायरेक्शन ऐसे जा रहा था वेक्टर, तो ऐसे बॉडी जा रहा था, ठीक है, बॉडी कैसे जा रहा था, ऐसे बॉडी जा रहा था, बट कोई एक पर्सन आया यहां से खींचा, कहां से, कोई एक पर्सन आया इसको यहां से खींचा, तो बॉडी कैसे जाएगा, बॉडी तो ऐसे जाएगा डेफिनेटली, फिर ऊपर का डायरेक्शन जाएगा कि नहीं, बॉडी ऊपर में जाएगा, फिर हियर जाएगा, तो कैसे जाएगा बॉडी, रिजल्टेंट ऐसे खींचेगा ना बॉडी को, ये कॉर्नर में है कि नहीं, ऐसे जाएगा। बोला यस और नो, yes or no means, my dear student, I make understand you, it change the direction means ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, x कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं ये वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट, ये किसका कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट, तो फोर्स कौन सा डायरेक्शन में डाल दिया, ऐसे, ऐसे डाल दिया, देखो ऐसे था, मैं फोर्स को यहां खींच रहा था, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, फोर्स मैंने ऐसे डाला, तो बॉडी अब ऐसे जाएगा, डायगोनल ऐसे, बोलो यस और नो, ऊपर भी जा रहा है, फिर हॉरिजॉन्टली भी जा रहा है, देखो ये हॉरिजॉन्टल जा रहा था, ये कहां जा रहा था, वर्टिकली जा रहा था, यस और नो, ये वर्टिकली जा रहा था, बट जब यहां एक फोर्स लगा दिया ऐसे खींचेगा, बोलो यस और नो, क्लियर, डायगोनल जाएगा बॉडी। सो आई वांट टू टेल यू, when the body is in the velocity function is here and force is here, so body can change its direction, इसी डायरेक्शन में जाएगा बॉडी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, फोर्स में चेंज द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज both magnitude and direction, both magnitude and direction, दोनों को चेंज कर सकता है। माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये स्केलर वेक्टर में ऑलरेडी बता दिया था क्लास में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, कलर चेंज कर देते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी फंक्शन है, जब कोई एक फोर्स थीटा एंगल में जा रहा है, जब कोई एक फोर्स थीटा एंगल में जा रहा है, ठीक है, थीटा एंगल में, तब क्या होगा, इसका टू कंपोनेंट आएगा, एम आई करेक्ट और नॉट, वन इज वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, यस और नो, माय डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी v में जा रहा था, फिर आड़ हो गया कितना, कोई एक फोर्स आड़ हो गया, मैंने बताया था, जब फोर्स नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब जीरो नहीं होगा वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, सेम डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव वेलोसिटी हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव, जैसे कि बॉडी ऐसे जा रहा था, तो और एक फोर्स भी यहां से डाल दिया मैंने, अरे ये एक बॉडी है ना, ये बॉडी ऐसे जा रहा था, कैसे, ऐसे जा रहा था, तो कोई एक पर्सन ऐसे फोर्स डाल दिया, तो ये फोर्स से जाएगा और थोड़ा वेलोसिटी इंक्रीज होके जाएगा, बट बॉडी ऐसे जा रहा है, कोई एक बॉडी यहाँ पे दे रहा है फोर्स, तो ये स्लो डाउन होगा, नहीं तो स्टॉप रेस्ट को आ जाएगा, बोलो यस और नो, तो ये सेम डायरेक्शन जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोथ फोर्स एंड इनिशियल वेलोसिटी आर कहां पे, इन सेम डायरेक्शन पे, सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इंक्रीजेस, फाइनल वेलोसिटी इंक्रीजेस, बोलो यस और नो, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सिमिलर डिक्रीज भी हो सकता है ना, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेते हैं एक बॉडी, एक कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, वेलोसिटी बॉडी यहाँ पे जा रहा है डायरेक्शन में, बट फोर्स कैसे लग रहा है ऐसे, तो इसका रिजोल्यूशन कहाँ लगेगा, वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, ये थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एफ है, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, केवल डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये फॉरवर्ड था डायरेक्शन, ये क्या कर दिया, बैकवर्ड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, तो वेलोसिटी है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये है बैकवर्ड डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी रिड्यूस्ड, अरे दोनों फोर्स जब अपोजिट हो जाएगा ना, वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, तब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, बोले यस और नो, डिक्रीजेस, ठीक है, दैट आर द कंपोनेंट्स, और दैट इज द क्या है, रिजल्टेंट फोर्स का काम है क्या है, इट चेंजेस द स्पीड, इट चेंजेस द डायरेक्शन, इट मे चेंज द बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, एंड लास्ट पार्ट इज दैट इट मे चेंज
इट में चेंज शेप एंड साइज। शेप एंड साइज आपको ये पता है, आपके ऊपर ग्रेड खाली आएगा पर पैर इसे दबा देगा, क्या होगा आपका जो इतना बड़ा 6 फीट का आपका हाइट है क्या हो जाएगा सर, मिट्टी में मिल जाएगा सर यार, अरे नहीं बोलेंगे ग्रेड खाली भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। बोलो यस और नो, एम आई करेक्ट और नॉट। सो कल मैंने बता दिया था फोर्स का यूनिट वगैरह वगैरह के जीएफ में क्या है, वेट इक्विवेलेंट, मास इक्विवेलेंट वेट क्या है, ये सब बता दिया था, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट अरिस्टोटल फलासी। अरिस्टोटल फलासी क्या है, देखो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है अरिस्टोटल फलासी। अरिस्टोटल फलासी क्या बोल रहा है, अरिस्टोटल फलासी क्या बोल रहा है यार, बताओ बताओ। रॉन्ग स्टेटमेंट बोल दिया, क्या रॉन्ग स्टेटमेंट बोल दिया। अरिस्टोटल ने बताया ए कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म, try to understand my dear student, a constant and uniform क्या है, कोई एक constant and continuous, you can tell constant and continuous force is required, force is required to keep a body, to keep a body, to keep a body with uniform motion। ये समझने के लिए कोशिश करो माय स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सपोज मान लेते हैं कोई एक बॉडी रिजिड सपोर्ट में है, तो इसका वेलोसिटी कितना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी कितना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है v है, इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। मीन्स ये जो यूनिफॉर्म है ना, किसी का डाउट होगा यूनिफॉर्म का मीनिंग सर क्या है, मीन्स आप 1 सेकंड के बाद देखो बॉडी 20 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, 2 सेकंड के बाद देखो बॉडी वही 20 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, 3 सेकंड के बाद भी देखो बॉडी वही 20 मीटर पर सेकंड में चल रहा है कंटिन्यूअसली। टाइम चेंज होता जाएगा बट वेलोसिटी क्या है, रिमेन अनचेंज जब हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बोला यस और नो। बट ये क्या बोला, एक कांस्टेंट फोर्स चाहिए, एक कांस्टेंट फोर्स और कंटिन्यूअस फोर्स चाहिए। माय डियर स्टूडेंट मैंने एक फोर्स दे दिया इसको, एफ नेट दे दिया, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस मान लेते हैं 5 न्यूटन दे दिया, तो ये वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म में रहेगा क्या, वेलोसिटी विल बी चेंज, ऑलरेडी आई टोल्ड वेलोसिटी विल चेंज। हाँ ये बोलता ये कि हाँ एक कांस्टेंट और कंटिन्यूअस फोर्स देने में बॉडी में क्या हो जाता है, इफ एफ नेट दे देने में क्या हो जाता है, वेलोसिटी विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। और नहीं तो ये स्टेटमेंट को ये बोल सकता है कि एक कंटिन्यूअस और कांस्टेंट फोर्स ना बोल के इफ एफ नेट ऑन ए बॉडी इज 0 देन द बॉडी विल बी मेंटेन द यूनिफॉर्म मोशन, ये बोल सकता है। मीन्स ये जो बोल देगा एफ नेट इज इक्वल टू 0, ये बोला नहीं ना, जब एफ नेट 0 हो जाएगा, जब एफ नेट 0 हो जाएगा, जब एफ नेट 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब एक्सटर्नल फोर्स आएगा, जब एक्सटर्नल फोर्स आएगा एट द टाइम क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, बढ़ता जाएगा नहीं तो घटता जाएगा। क्यों, सेम डायरेक्शन हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा वेलोसिटी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मींस वेलोसिटी रिड्यूस्ड हो जाएगा, रिटार्डेशन आ जाएगा, ठीक है क्लियर। तो ये ही था अरिस्टोटल का फलासी रूल, ठीक है कंप्लीट ना। नेक्स्ट पार्ट विल बी गो फॉर बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मां कसम यही तो इंटरेस्टिंग चीज है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, एनीबॉडी बताओ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की हेडिंग इंटरेस्टिंग चीज द न्यूमेरिकल, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ये बोल रहा है, मैं एक इजी डेफिनेशन बोल रहा हूं फिर बुक का डेफिनेशन बोलूंगा, ठीक है। बुक इसका डेफिनेशन क्या है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी external force a body never change its position, never change its position, its
आइदर पोजीशन और डायरेक्शन और स्टेट और शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। ये कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा बॉडी का। फोर्स जब तक नहीं डालेंगे कोई बॉडी के ऊपर, किसी कुछ कोई एक पार्ट भी कंसिडर, एनीथिंग यू विल बी कंसिडर, कोई भी एक फिजिकल पैरामीटर ले लो, शेप साइज, कोई एक डायमेंशन ले लो, कोई एक स्टेट पोजीशन, कुछ भी ले लो, बॉडी का कुछ भी चेंज नहीं होने वाले हैं जब तक फोर्स नहीं लगे। इसी को क्या बोलते हैं? गैलीलियो इनर्शिया लॉ और न्यूटन्स लॉज ऑफ इनर्शिया। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय गैलीलियो, then developed by न्यूटन। सो इसके लिए इसको बोलते हैं गैलीलियो लॉज ऑफ इनर्शिया। इसके लिए फर्स्ट जो हमारा जो फर्स्ट पेज में दिया था ना गैलीलियो लॉज ऑफ इनर्शिया, इसके लिए डेवलप बाय न्यूटन। ठीक है, गैलीलियो का स्टोरी बताया था ना कल। वो हर कोई टाइम में पूरा जेल में रहता था। ठीक है, गैलीलियो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, दुनिया में सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, बट इसको हर कोई टाइम में जेल में डाल देते थे। इनका जो किंग था ना, एम्पायर था ना, वो डाल देते थे, वही गलती था इनका। नहीं तो ये होता तो बाहर में ना बहुत दुनिया में बहुत सारे निकाल देते। ठीक है, साइंटिस्ट लोग को बहुत इजी हो जाता। टेलीस्कोप कौन निकाला? गैलीलियो। ग्रेविटी कौन निकाला पहले? गैलीलियो। जो इनर्शिया कौन निकाला? गैलीलियो। फोर्स का फंक्शन कौन निकाला? वही गैलीलियो। ठीक है, बहुत सारा चीज आपका जो 11th का एनसीईआरटी में है, क्या क्या इनका इन्वेंशन है, इसके बाद सब रिनोवेट किया इसको। ठीक है, मीन्स अनवेल किया, रिवोल्यूट किया। ठीक है, सो इंट्रोड्यूस्ड बाय गैलीलियो। ठीक है, सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया माय डियर स्टूडेंट। मान लेते प्रैक्टिकल इस चीज को समझने में कोशिश करो। कोई एक बॉडी है, मान लेते एक गुपचुप का दुकान है, पानी पूरी का। ठीक है, जिसको आप पानी पूरी बोलते हैं, पानी पूरी लड़की का बहुत फेवरेट होता है ना, क्योंकि हैंड जो हाथ को वॉश करके पानी इसमें डाल देते हैं ना। अरे जब पानी पूरी डाल लेते हैं ना, इसका पानी पूरा हाथ को इधर तक दे देते हैं ना, पूरा इसके अंदर, पूरा इनका जो नाखो है ना, नेल से पूरा डस्ट पार्टिकल इसमें चल जाता है। और जो आलू होता है ना, आलू को पूरा पैर में पूरा इसको क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं ना। अरे इतना सारा आलू कैसे करेंगे यार, पेस्ट पैर में कर देते हैं ना। तो ठीक है, पानी पूरी किया, एक स्टॉल ले लिया। इसका मास कितना है यार? मास इज इक्वल टू 10 kg। और एक मैंने लैम्बोर्गिनी कार ले लिया। क्या सर, कितना बार बोलोगे सर लैम्बोर्गिनी के बारे में? सपना में भी आ रहा है लैम्बोर्गिनी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट लैम्बोर्गिनी कार इज हियर। एक लैम्बोर्गिनी कार है, इसका मास कितना है? इसका मास कितना है? मान लेते हैं 1000 kg। कितना है? 1000 kg। तो मैंने स्टूडेंट बोलो, ये वाला गुपचुप वाले और पानीपुरी वाले स्टॉल को रिप्लेस करने के लिए, इसको मोशन देने के लिए, इसको मोशन देने के लिए ज्यादा फोर्स जरूरी होगा या तो इसको ज्यादा जरूरी होगा? मान लेते इसको जरूरी है F1, इसको जरूरी है F2। किसको ज्यादा फोर्स चाहिए बताओ? किसको ज्यादा फोर्स चाहिए? हाँ सर, F1 इज लेस देन F2। हाँ, इसको मान लेते हैं 10 न्यूटन चाहिए, तो इसको क्या चाहिए? 1000 न्यूटन सर चाहिए फोर्स F2। तो क्या हो जाएगा? F1 इज लेस देन F2। मैंने सुनिए, ये बताओ तो किसके लिए डिपेंड किया? ये जो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड किया? सर डिपेंड्स ऑन द मास। इसका छोटा मास था, इसका कितना था? लार्ज मास था, है कि नहीं? मैंने इनर्शिया में क्या बताया था डेफिनेशन, देखो थोड़ा सा प्रीवियस में जाते हैं। विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स ए बॉडी नेवर चेंज इट्स स्टेट, पोजीशन और डायरेक्शन। कोई एक बॉडी का स्टेट हो, या तो स्टेट मींस 28 स्टेट्स नहीं है यार, कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट नहीं। स्टेट मींस मूवेबल कंडीशन में है या तो फिर स्टैटिक कंडीशन में है, इसी को बोलते हैं स्टेट। ठीक है, तो कोई एक बॉडी का स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो माय डियर स्टूडेंट, इनर्शिया जिसका ज्यादा है, इसको ज्यादा फोर्स चाहिए कि नहीं? जिसका ज्यादा फोर्स है, इनर्शिया इज मैक्सिमम, इनर्शिया इज मैक्सिमम रिक्वायर्ड मैक्सिमम फोर्स। कोई एक बॉडी का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, तो इसी को ज्यादा फोर्स भी चाहिए इनर्शिया को चेंज करने के लिए। मान लेते हैं आप रेस्ट ऑफ इनर्शिया में है, इनर्शिया आप रेस्ट में है, आपको मोशन दिलाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। कोई एक बॉडी मोशन में है, लैम्बोर्गिनी में जा रहा है, 500 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है,
तो इसको स्टॉप करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तो इनर्शिया जितना ज्यादा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो सकता है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन हो सकता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी हो सकता है। जो भी इनर्शिया मैक्सिमम है, इसको क्या चाहिए? मैक्सिमम फोर्स चाहिए, है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन में इसका फोर्स कम चाहिए, इसका फोर्स ज्यादा चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं ये बोल सकता हूं क्या, ये बॉडी 2 है, ये बॉडी 1 है, तो मैं बोल सकता हूं क्या, बॉडी 1 हैज ग्रेटर इनर्शिया, ग्रेटर इनर्शिया देन बॉडी 2। बॉडी 1 का ज्यादा इनर्शिया है देन बॉडी 2। बोलो यस और नो। तो ये किसके वजह से हुआ इनर्शिया ज्यादा? ड्यू टू मास। अरे ये मास के वजह से हुआ ना, ड्यू टू मास, ड्यू टू मास। एंड ये भी किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू मास। तो मैं बोल सकूं क्या, जिसका मास ज्यादा है इसका, जिसका मास कम है इसका इनर्शिया कम है, जिसका मास ज्यादा है इसका इनर्शिया ज्यादा है। बोलो यस और नो। समझ में आया कि नहीं? जो बॉडी का मास बहुत कम है इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। ज्यादा है नहीं यार, मास कम है तो इनर्शिया भी कम है, मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा है। तो मैं एक फ्रंट पेज में लिखा था, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। बोलो यस और नो। जिसको जितना मास है इसको उतना फोर्स चाहिए इनर्शिया को काउंटरैक्ट करने के लिए। बोला यस और नो। सो मैं कैन आई राइट हियर, मास increases inertia increases, similarly mass decreases inertia also decreases। बोलो यस और नो। समझ में आ गया ना? बोलो समझ में आया कि नहीं? यस और नो। मास इंक्रीजेस तो इनर्शिया इंक्रीजेस, मास डिक्रीजेस तो इनर्शिया डिक्रीजेस। बट स्टार मार्क नोट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, इनर्शिया इज नॉट एज, sorry for that, mass is not a inertia, not a inertia। ये याद रखना है आपको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, सही है, बट जो मास है वो इनर्शिया नहीं है, जो मास है वो इनर्शिया नहीं है। मास इज नॉट ए इनर्शिया, it is the parameter or you can tell or mathematical value which determines the inertia। तो मास जो है वो इनर्शिया नहीं है, बट मास इनर्शिया का मैग्नीट्यूड बताता है। बोलो यस और नो। मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया को मास ही बताता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया इज डिटरमाइंड बाय मास। क्लियर? स्टार मार्क नोट पॉइंट। मास का यूनिट क्या है? kg। you can write gram, you can write milligram, you can write microgram, like that and so on। clear? similarly आप लिखते हो इनर्शिया का भी क्या होगा यूनिट? वही kg और ग्राम, लाइक दैट एक्सेट्रा यू कैन राइट। क्लियर? तो इनर्शिया का भी यूनिट क्या है? kg, ग्राम, एक्सेट्रा। और स्टूडेंट पूरा माइन्यूटली देखना, वीडियो को पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा विविडली देखना, कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करना, पूरा आराम से विविडली एक एक दिन में एक एक वीडियो खत्म करो। इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो देता हूँ 30 मिनट्स 40 मिनट्स का, ठीक है? ज्यादा लॉन्ग टर्म वीडियो नहीं देता हूँ। आप पूरा पेशेंस के साथ पूरा आराम से देखो, सब न्यूमेरिकल बनेगा यार चुटकी में। ऐसे ऐसे करोगे चुटकी में बनेगा न्यूमेरिकल, नहीं बनेगा तो मेरा नाम चेंज कर दूंगा बीडीपी, श्योर। तब अब चेक करेंगे इनर्शिया कितना टाइप होता है, इनर्शिया कितना टाइप होता है। 3 एग्जाम्पल दूंगा यार, पूरा थ्योरी में बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिया, टेलीग्राम चैनल में आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? आइकॉनिक चैनल, आइकॉनिक कॉन्सेप्ट एट द रेट ऑफ बीडीपी सर में, इसमें दे दिया विजया करके, विजया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 1, इसमें दिया हुआ है, पूरा थ्योरी में है। पूरा प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये थ्योरी क्लास नहीं है, पूरा एप्लीकेशन है, तो समझाता हूँ प्रैक्टिकली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। एक क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल बताऊंगा, इससे सब क्लियर हो जाएगा यार। पूरा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, सुनना पूरा आराम से। आपका पेशेंस को पकड़ के पूरा टाइट फास्टन करना पेशेंस को। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीनों इनर्शिया है। एक एग्जांपल देंगे, पूरा हो जाएगा आराम से।
स्टारमन नोट पॉइंट क्या बताते हैं, ये पूरा थ्योरी जो है ना एक लाइन में खत्म हो जाएगा। बॉडी गोज रेस्ट टू मोशन, रेस्ट टू मोशन। जब रेस्ट टू मोशन जाएगा इसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे। क्लियर? जब बॉडी रेस्ट में है, मोशन में जा रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बोलो यस और नो। बहुत सारे एग्जांपल नीट का बनाएंगे, जो असर्शन रीजन का एंड केस बेस्ड स्टडीज का, ठीक है, मेन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का। एंड सेकंड पार्ट क्या बोला, बॉडी गोज मोशन टू रेस्ट, मोशन टू रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। मीन्स पहला जो है वही इनर्शिया है, रेस्ट वो पहला है ना तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। सिमिलरली मोशन पहला है ना तो इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। रेस्ट टू मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन टू रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। बोलो ये सर नो। सर ये जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है क्या, एग्जांपल में बताते हैं, ठीक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लेते हैं, माइंड स्टूडेंट पूरा एंजॉय करना, स्टोरी बताता हूं, ठीक है। कोई एक लैम्बोर्गिनी कार में एक्स नाम का एक बॉय जा रहा है, ठीक है, राम नाम का एक बॉय जा रहा है, नहीं नाम नहीं देते, थोड़ा मॉडर्नाइज दे देते हैं, क्या देते हैं, जिम्पिंग दे देते हैं, ठीक है। जिम्पिंग नाम का एक स्टूडेंट जा रहा था लैम्बोर्गिनी कार में। रास्ते में ये देखा कि मालती एक स्टूडेंट है, इनका फ्रेंड है, वो गलत बात नहीं है, फ्रेंड है, फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड, दोस्ती इनके साथ है पूरा आराम से, ठीक है। वो फ्रेंड जा रहा था किसमें, रास्ते में जा रहा था, ठीक है। वो जब जिम्पिंग को देखा कि बोला कि अरे थोड़ा रोको, मुझे लेके जाना, बीडीबी सर का ऑफलाइन क्लासेस है, जाना है, बंद कर देंगे तो पूरा पनिशमेंट मिल जाएगा यार, ठीक है। तो ये गाड़ी को स्टॉप कर दिया। तब जब इस कार में मैडम ने बैठ गया, जिम्पिंग का एनर्जी बढ़ गया, पूरा सडनली बढ़ गया, पूरा एनर्जेटिक हो गया, ठीक है। तो ये जब मैडम बैठ गया, ये सडनली क्या किया, व्हीकल को सडनली एक्सेलरेट किया, सडनली व्हीकल को एक्सेलरेट कर दिया। जो मैडम बैठा था इनका गाड़ी में, जो मैडम बैठे थे इनका गाड़ी में, व्हीकल में, तो यह क्या किया, पीछे पलट गया। काम क्या, पीछे पलट गया। इनका काम क्या है, रेस्ट है ना, रेस्ट मीन्स बैकवर्ड। जो रेस्ट लेता है, ज्यादा रेस्ट लेता है ना, मनी ज्यादा कमाई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वो इनका काम क्या है, पीछे जाना, आगे नहीं। तो ये क्या हुआ, ये जब आगे व्हीकल को एक्सीलरेट कर दिया, ये क्या हुआ, पीछे पलट गया, और क्या हो गया, ऑटो बन गया, ठीक है। वो क्या हो गई, ऑटो बन गया, ठीक है। ये चल रहा था पूरा आराम से, बहुत तेज से स्पीड में चल रहा था, ठीक है। अगेन सेकंड एक मिल गया, एक गर्लफ्रेंड ने मिल गया, ठीक है। वो इनको बैठ के चल रहा था आराम से, पूरा जन्नत चलाई, क्या है, लैम्बोर्गिनी चलाई करके चल रहा था, पूरा गाना डाल के चल रहा था। सडनली वो रास्ते में व्हीकल का स्पीड बढ़ा दिया, और रास्ते में और थर्ड नंबर वाले गर्लफ्रेंड आगे थे। तो ये देख के क्या किया कि थर्ड नंबर को भी तो लिफ्ट देना है, क्या करेंगे, सडनली ब्रेक डाल दिया। ये जो पीछे बैठा था ना, ये आगे पलट के, इनका इंटरेस्ट क्या था, और तेज में भागेंगे, बट सडनली जब ब्रेक डाल दिया तो क्या किया, ये पलट के पूरा आगे एक गड्ढा में डाल गए, वो गर्लफ्रेंड वाले, सेकंड वाले। तो क्या बन गया, ये फोटो बन गई, ठीक है। तो ये जो पहला वाले थे पूरा रेस्ट में, सडनली मोशन गया तो बैकवर्ड चला गया, क्योंकि जो रेस्ट में होता है ना, पूरा बैकवर्ड पर्सन होते हैं, इल फेटेड होता है इनका माइंड, ठीक है, वो पीछे चला गया। जो व्हीकल में वेरी हाई वेलोसिटी में जा रहा था, इनका मेंटालिटी क्या था, और थोड़ा हाई वेलोसिटी में जाए। बट क्या हुआ, सडनली ब्रेक जब डाल दिया, ये क्या किया, हाँ मैं आगे चला जाऊंगा, आप मत जाओ, मैं चला जाऊंगा, बहुत चला गया पूरा, जिंदगी भर में पूरा फोटो बन गया यार, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड वाली क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, मान लेते हैं स्मृति नाम का एक स्टूडेंट है, इनका फर्स्ट ईयर यूपीएससी तैयारी हुआ, ठीक है। स्मृति नाम का एक स्टूडेंट है, इनका फर्स्ट ईयर तैयारी हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर जब तैयारी किया तो इनका यूपीएससी में कुछ नहीं हुआ, ना रिटिन हुआ, ना मेंस हुआ, ना इंटरव्यू हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब सेकेंड ईयर का तैयारी किया, इनका रिटिन हो गया, ना मीन्स प्रीलिम्स हो गया, ना मेंस हुआ, ना इंटरव्यू हुआ। फिर जब थर्ड ईयर तैयारी किया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, ना इंटरव्यू हुआ। जब फोर्थ ईयर में तैयारी कर रहा था, एट दैट टाइम इनका फर्स्ट ईयर से एक मालती नाम का एक गर्लफ्रेंड था। तो फर्स्ट ईयर से इनको कन्विंस कर करके चल रहा था पूरा थर्ड ईयर तक। वही थर्ड ईयर में मालती ने क्या बता दिया यार, अरे स्मृति इस साल मुझे शादी करो, नहीं तो मेरा पापा मुझे एक रिक्शा पुलर के साथ भेज देंगे यार, फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो एट दैट टाइम स्मृति ने क्या सोचा, अरे मालती को 3 साल रिलेशनशिप है यार, कैसे छोड़ दूं। तो स्मृति ने क्या सोचा, अरे यूपीएससी होगा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया मालती की वजह से, ठीक है। तो स्मृति ने यहाँ जब फोर्थ ईयर में था,
मालती जब बता दिया तो ये क्या क्या, अरे यूपीएससी नहीं होगा यार, आईपीएस नहीं बन पाएंगे तो पीएम तो बन पाएंगे। तो स्मृति ने क्या क्या, मालती के वजह से चेंज कर दिया डायरेक्शन, यूपीएससी आईएएस से पीएम तक, आईएएस से कहां तक चला गया, पीएम तक। क्यों? ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑफ मालती। ठीक है, मालती ने जब फोर्स डाल दिया, ये आईएएस के डायरेक्शन में नहीं जाके कहां चला गई, वो चला गया पीएम का डायरेक्शन में। इनका जो इरादा क्या है, इनका इंटेंशन क्या है, he tried to maintain it in that same direction, बट जब एक्सटर्नल फोर्स आ गया मालती का, वो बोल दिया अरे क्या करेंगे यार, पीएम के चला जाएंगे, एक नौकरी तो हो जाएंगे, तो मालती को शादी कर लेंगे यार। तो ये क्या क्या, डायरेक्शन चेंज कर दिया। ये तीनों है, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. All of you clear? Rest to motion, inertia of rest, motion to rest, inertia of motion। एंड कोई एक डेफिनेट पाथ में चल रहा था, ट्रैक चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अनदर एग्जांपल, कोई एक आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, ठीक है, पूरा सीधा रास्ता है, पूरा हाई वेलोसिटी में जा रहे थे, बट सडनली क्या हुआ, एक टर्निंग आ गया। जब टर्निंग आ जाता है माय डियर स्टूडेंट, ऐसे टर्निंग आया, मान लेते हैं ऐसे टर्निंग आया, ऐसे टर्निंग आया, तो एट द टाइम क्या हो जाता है, ऐसे जब टर्निंग आया, व्हीकल ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था व्हीकल, ठीक है, जब व्हीकल ऐसे जा रहा था, ये जो इनसाइड द पर्सन, व्हीकल के अंदर जो पर्सन है, सपोज मान लेते हैं, देखो ये डायग्राम देखो समझ में आ जाएगा, कोई एक बॉडी ने ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, ठीक है, रास्ता में जा रहा था, पानी पूरी खा रहा था, तो ऐसे रास्ते में जाने में एक से टर्निंग आ गया, तो व्हीकल कैसा था, ऐसे ही तो था व्हीकल, है क्या नहीं? तो एट दैट टाइम क्या होगा, ये जो टर्निंग के वजह से बॉडी को ओवरटर्न करने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या था, स्ट्रेट लाइन। सडनली जब चेंज हो जाएगा, ये आउटवर्ड एक फोर्स डाल देगा, फोर्स, वही क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई एक बॉडी स्ट्रेट में जाता होगा, तो सडनली डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये क्या हो जाता है, बॉडी को हापाजर्ड फील होता है, कोई कोई आदमी को भी वोमिटिंग हो जाता है, ठीक है, कोई कोई आदमी को वोमिटिंग भी हो जाता है। क्यों? वही इनर्शिया की वजह से, क्योंकि यहाँ मन है स्ट्रेट जाने के लिए, टर्निंग कर दिया तो बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाता, वोमिटिंग हो जाता है, ठीक है। इनर्शिया डायरेक्शन थ्योरी वाले पार्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। फिर चलते हैं क्या, मोमेंटम को, क्या चलते हैं, मोमेंटम को। वेरी इंटरेस्टिंग है, अब से न्यूमेरिकल शुरू हुआ। मोमेंटम क्या है माय डियर स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ मोशन कंसिस्ट इनसाइड ए बॉडी, क्या है मोमेंटम, क्या है द अमाउंट ऑफ, प्रेशर नहीं सोचना, प्रेशर नहीं है, एंजॉय करना मोमेंटम के साथ। मोमेंटम क्या है, द अमाउंट ऑफ, एक मिनट, ये क्या है, हाँ चल रहा है, सही है। ये मोमेंटम क्या है, द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ मोशन in a body is known as momentum, is known as momentum। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी माय डियर स्टूडेंट कौन सा यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली मोमेंटम इज इक्वल्स टू, ये लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, नॉट एंगुलर, लीनियर मोमेंटम, सर्कुलर रोटेशनल में एंगुलर पढ़ेंगे, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। तो मास इनटू वेलोसिटी होता है, डॉट प्रोडक्ट है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यूनिट निकाल सकते हो कि नहीं, बोला यस और नो। तो P इज इक्वल टू व्हाट, मास क्या है केजी, वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकंड, सेकंड स्क्वायर और सेकंड होता है यार, सेकंड, तो यूनिट क्या हो गया, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। डायमेंशन m1 l1 t टू दी पावर -1, ठीक है, m1 l1 t टू दी पावर -1 हो गया, ठीक है, डायमेंशन मिल गया। अब चलेंगे,
सर कोई एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे चल रहा है बॉडी, यहाँ से ऐसे चल रहा है, ठीक है, कोई एक बॉडी ऐसे चल रहा है, यहाँ से एक धागा है, फास्टन है, एक धागा यहाँ पे है, फ्रॉम हियर टू हियर, एक स्टोन ये पे, स्टोन पोजीशन नंबर 1 कुछ चेंज करके कहां पे चला गया, पोजीशन नंबर 2, तो धागा यहां चला गया, पोजीशन नंबर 2। माय डियर स्टूडेंट, जब ये धागा यहाँ पे कट जाएगा, धागा जब यहाँ कट जाएगा तो क्या होगा, आई थिंक ये स्टोन वाले ना ये डायरेक्शन में जाएगा, बोलो यस सर नो। मान लेते हैं इसे एक बॉडी को घुमा रहे हैं, आप घुमा रहे हैं, तो वायर ऐसे फास्टन है, तो इसे घुमा रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो जब यहाँ बॉडी का स्टोन का जो थ्रेड है ना टूट गया, तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा बॉडी, बोलो यस सर नो। यहाँ जब स्टोन टूट जाएगा बॉडी कहां जाएगा, इसी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ linear velocity, linear velocity, linear velocity v का। मान लेते पोजीशन नंबर 2 चेंज करके बॉडी कहां आ गया, P3 पोजीशन को, तो धागा यहां आ जाएगा, तो यहाँ पे धागा क्या हो गया, कट हो गया, तो बॉडी कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में, क्लियर। तो मैं लिख सकता हूं क्या, द tangent of the circular tangent of angular path of a body gives the direction of velocity, yes or no, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। कोई एक बॉडी का टांजेंट से हम खींचेंगे, टांजेंट खींचेंगे मीन्स जो आप इसको बोलते हैं स्पर्शक, मीन्स कोई एक पॉइंट का स्पर्शक जो होता है, जस्ट इसे टच करके चला जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, टांजेंट, ठीक है। यहाँ पे V4 हो जाएगा पोजीशन नंबर 4 में, बोला यस और नो। कोई एक बॉडी को स्पर्शक चला जाते हैं 0 डिग्री एंगल में बनाकर, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, टांजेंट। वही टांजेंट क्या देता है, लीनियर वेलोसिटी का। बट स्टारमैन नोट पॉइंट ये है, द डायरेक्शन of linear velocity, the direction of linear momentum, is along with the direction of linear velocity, linear velocity। तो ये क्या है, मान लेते हैं V1 का ये जो क्या है, ले लेते हैं किसको, इसका जो लीनियर मोमेंटम कौन सा डायरेक्शन होगा, ये वाला डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम P1, P2 है। यहाँ का लीनियर मोमेंटम कहाँ होगा, ये P3। लीनियर मोमेंटम कहाँ होगा, ये डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन P4। बोलो यस और नो। मींस लीनियर डायरेक्शन, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वही लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, अलोंग विथ ईच अदर, ठीक है। चलते हैं आगे, न्यूमेरिकल बनाते हैं। अब पूरा मैराथन चलेगा यार, बी एंजॉय इट। क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 2 आइडेंटिकल बॉडी है, क्वेश्चन नंबर 1, और न्यूमेरिकल पूरा कल मैराथन बनाएंगे, ठीक है। जुड़ते रहना, एंजॉय करना न्यूमेरिकल के साथ। एंड इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, पूरा आराम से इनका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मोबाइल के साथ रखना, हार्ड कॉपी कोई जरूरत नहीं है, पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा चिप में पढ़ेंगे, बट बनेंगे आइकनिक, कम से ज्यादा, लिमिट से अनलिमिटेड बन जाएंगे, ठीक है। Q1 क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 आइडेंटिकल बॉडी, क्वेश्चन को ब्लैक में लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन नंबर 1 को चेक करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 identical body of velocity 5 meter per second and 10 meter per second, then find out the ratio of their momentum, ठीक है, मोमेंटम का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो we know my dear student, P1 is equal to what, M1 V1, P2 is equal to what, M2 V2, बोलो yes और no। बट क्वेश्चन में गिवन है क्या, आइडेंटिकल बॉडी है, आइडेंटिकल बॉडी मीन्स व्हाट, M1 मस्ट बी इक्वल टू M2, दोनों का एरिया भी सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा, मास सेम होगा, वेट सेम होगा, ऑल दिस थिंग्स आर इक्वल, देन आई कैन टेल दैट इज आइडेंटिकल, ठीक है। M1 इज इक्वल टू M2, तो मैं लिख सकता हूं क्या,
P1 इज इक्वल्स टू m1 कितना है पता नहीं, m इंटू वेलोसिटी कितना है 5, सो आई कैन राइट 5 इंटू m kg इंटू मीटर पर सेकेंड हो गया। तो P2 कितना है m इंटू 10 है कि नहीं, आई कैन राइट 10m kg इंटू मीटर पर सेकेंड। बोलो यस और नो। सो नाउ टेक द रेशियो, लेट टेक द रेशियो ले लेते हैं। तो P1 अपन P2 इज इक्वल व्हाट, m इंटू 5 अपन m इंटू 10, m कैंसिल, इट इज 5 कैंसिल 2, सो इज इक्वल हाउ मच 1:2। वेरी इजी क्वेश्चन यार, कुछ है क्वेश्चन में कुछ है क्या, 1:2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये दो बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी गिवन है, बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2 है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों का मोमेंटम सेम है क्या, हो सकता है, सब देखेंगे चेक करेंगे पता चलेगा। सो P1 इज इक्वल टू हाउ मच, m1 v1 इज इक्वल हाउ मच 2 kg इंटू 10 इज इक्वल हाउ मच 20 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। हाँ P1 तो आ गया 20। तो देखते हैं P2 कितना है, m2 इंटू v2 इज इक्वल हाउ मच 4 इंटू 5 इज इक्वल हाउ मच 20 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। बोलो यस और नो। तो दोनों का मोमेंटम सेम है क्या, हाँ यहाँ तो सर 20 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, सर यहाँ तो भी 20 है तो सेम है। अरे पागल माय डियर स्टूडेंट, क्या मैंने बताया, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं, मैग्नीट्यूड को देख के छोड़ देंगे नहीं, क्या करेंगे, एट दैट टाइम वी हैव टू चेक दैट देयर डायरेक्शन, नो डाउट देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, बट डायरेक्शन इट विल बी मूव इन दिस डायरेक्शन, इट विल बी मूव upward direction। बोलो yes or no। I can tell P1 is not equal to P2, दोनों सेम नहीं है according to its direction, not magnitude, its direction not magnitude। डायरेक्शन के वजह से वो क्या है, इक्वल नहीं है। डायरेक्शन सेम होता तो दोनों का मोमेंटम सेम हो जाता, बट मैं ये लिख सकूं P1 मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P2 मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, ये बोल सकता हूं, बट मोमेंटम दोनों इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। स्टे ट्यून एंड लेट्स एंजॉय द व्हाट दशहरा वेकेशन एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। आपका जो रेफरेंस बुक है एससी वर्मा है, नहीं तो एसएलआर है, इरोडॉव है, नहीं तो सिंगेज है, कुछ भी न्यू मिलेनियम है, कुछ भी बुक है आपके साथ, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आप घर में बनाना आज, ठीक है। एंजॉय भी करना दशहरा वेकेशन को, और आज के लिए ये जो क्लास यहाँ पे रख रहे हैं नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर योर नाइस कोऑपरेशन, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, लेट्स एंजॉय थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड कॉन्सेप्ट के साथ, आइकनिक कॉन्सेप्ट का, ठीक है। एंड कल पूरा एंजॉय करना, न्यूमेरिकल फुल बनाएंगे कल, क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट खत्म हुआ बहुत सारा न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, प्रोजेक्टाइल का है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है, मोशन इन प्लेन का है, इसी कॉन्सेप्ट का तो देखेंगे कल। आज के लिए इतना, स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय विद द कॉन्सेप्ट, थैंक यू।